आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्काइन खत्म कर लिया था। आई गेस आप लोगों को डीबुक कोड मिल गया होगा। उसमें आपका दोनों है, हाइड्रोकार्बन भी है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आई वुड रिकमेंड पहले आप हाइड्रोकार्बन सॉल्व करिए, उसके बाद फिर जीओसी आप धीरे धीरे करके करते खत्म करिएगा उसे। ठीक है, पहले अभी जो नियरेस्ट चीज़ें हैं वो पहले खत्म कर ले तो ज़्यादा बेटर है। एनीवे, सो अल्काइन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखा था। उस प्रॉब्लम्स में अगर कोई आपको डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर देन विल मूव ऑन विद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। Okay, so there is no problem. Very good. In electrophilic aromatic substitution, we should start our study with Huckel's rule. क्योंकि अगर हम इसके वर्ड्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव aromaticity, and in the aromaticity we have studied about the Huckel's rule. So we all know कि Huckel's rule क्या है. We have also studied this in general organic chemistry. So there are four rules to find out if a compound is aromatic or not. So the first rule is it must be planar and cyclic. The second rule is they must contain p electron cloud, which is unhybridized electrons, or rather we can say pi electron cloud, which is taking part in conjugation. The pi electron clouds must cover all atoms of the ring. Okay, so यहाँ पे pi होना चाहिए, not p. Should be pi. So these pi electron cloud must cover all atoms. So the ring must be completely conjugated, that's all. And the total number of electrons taking part in conjugation must be of the order of 4n plus 2, where n is 0, 1, 2, 3, etc. etc. So on the basis of the Huckel's rule, we have seen certain molecules, certain ions to be aromatic. ठीक है, अगर ये फर्स्ट थ्री रूल्स में से कोई भी एक रूल अगर फेल हो जाता है तो द मॉलिक्यूल विल बी नॉन एरोमेटिक. अगर फर्स्ट थ्री रूल्स इज वैलिड, द फोर्थ रूल केम आउट टू बी 4n, so then the molecule will be anti-aromatic, right? So we have seen that in general organic chemistry. So these are some examples of aromatic compounds, and on that basis we can see कि यहाँ पे आपका जो number of electrons है that is 6, यहाँ पे भी 6 है, हाँ यहाँ पे 2 है, n equals to 0 होगा तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है. Alright, so यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है that is not conjugated because नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा that will be in the plane of the ring, so it will not take part in the conjugation. Alright, so on the basis of the resonance we have a effect called as mesomeric effect, and this is because of the uh, delocalization of electrons. Alright, so the pi electron redistribution in a conjugated system via their pi orbital, via their p orbitals भी बोल सकते हैं, not pi orbital, p orbitals is mesomeric effect. This effect arises due to delocalization of the electrons in conjugated system. So we have seen certain molecules or certain ions which is showing delocalization, and because of the delocalization the electron density changes in the benzene ring, right? So अगर हम फिनॉक्साइड आयन लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉप होगा इसका. अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ इस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे. So we can say कि there are some groups which will increase electron density at ortho and para position, and there will be certain groups which will decrease electron density at ortho and para position. Alright, so basically ortho and para position are dependent on the presence of the group. So group के basis पे हम ortho para define करेंगे, मेटा मेटा ये पैरा पैरा. तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज ऑर्थो पोजीशन. ऑलराइट, एंड द सेकंड पोजीशन इज द मेटा पोजीशन, एंड लास्ट पोजीशन इज द पैरा पोजीशन. ऑलराइट, सो अगर हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से हमें क्या क्या पता चलता है वो देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इंक्रीजेस, राइट?
यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव कह सकते हैं. द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ड्यू टू द ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग. जो ग्रुप अटैच है उसकी वजह से है. Right, the MM effect due to a group attached in aromatic ring is mesomeric effect. So mesomeric effect is actually the increase or the decrease of the electron density in the benzene ring due to the presence of a group. Alright, so there are two types of group we know, which is plus M group and minus M group. Plus M groups will be the groups which will provide electrons, so they are basically electron donating in nature. They will generally bear lone pair. Alright, and also they increase electron density at ortho and para position, right? So these groups are generally known as ortho para directing groups, and we are talking with respect to the electrophiles. ठीक है, electrophiles जब आएगा तो ये electrophile आपका ortho position और para position पे आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज वैसे स्पीसीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, राइट? सो लाइक H प्लस, ठीक है, लुईस एसिड बेसिकली AlCl3, राइट? So BF3, BH3, they will be Lewis acid, right? So these will be attracted towards the position where the electron density is more. So अगर आप plus M group ले रहे हो benzene ring में कहीं, तो that plus M group will increase the electron density at ortho and para position, and the electrophiles will be directed towards this position. That is why ये जो है आपका ortho और para directing groups कहलाता है. There are certain examples. इन examples में आप देख सकते हो कि जो भी एटम है उन एटम्स में आपका लोन पेयर्स है. नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फिर से नाइट्रोजन में भी है, ऑक्सीजन में भी है, फिर यहाँ सल्फर में भी आ गया, फिर कार्बन में आ गया, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन में, फिर ऑक्सीजन में है, फिर यहाँ नाइट्रोजन में आ गया, फिर यहाँ पे हैलोजेंस में आ गया, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग ये देखें कि माइनस एम ग्रुप, द अदर साइड ऑफ the picture, which is the electron withdrawing group, right? So generally they will be having a vacant orbital or a positive charge in them. All right, so they will decrease the electron density at ortho and para position, क्योंकि अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हमें पॉजिटिव चार्ज देगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मैं दिखा देता हूँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर कैसे बनेगा. So I am taking a carbonyl group in benzene ring.
Alright, so there will be 5 resonating structures for these compound, which is यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये यहाँ पे R भी लगा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है. सो जैसे हमने बोला कि कार्बन में या तो वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा या फिर ये पोलराइज हो जाएगा टू गिव यस वेकेंट ऑर्बिटल, एंड इफ वी ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग हाइब्रिड, देन दैट हाइब्रिड विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे आ रहा है. सो द रेजोनेटिंग हाइब्रिड विल बी हैविंग partial positive charge at ortho position and para position. राइट, सो यहाँ पे अब जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका मेटा पे जाएगा, नहीं, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, राइट, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के रेस्पेक्ट में मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑलराइट, सो on that basis there are certain groups which is known as meta directing groups, and it is given for the electrophiles. all right, so जैसे for example CN, राइट, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है. सो ये नाइट्रोजन पे आ गया, ठीक है, फिर सिमिलरली ऑक्सीजन पे आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये जो बेंजीन रिंग अटैच होगा उस बेंजीन रिंग से अपना इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे, जो भी बेंजीन रिंग अटैच होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, ऑक्सीजन पे जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन में जाएगा, ये पोलराइज हो रहे हैं. फिर यहाँ बोरॉन में आप देखोगे तो यहाँ बोरॉन में आपका एक वेकेंट ऑर्बिटल है, सो ये भी जो है आपका एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, दिस इज हैविंग अ वेकेंट p, तो दैट इज व्हाई दिस इज माइनस m ग्रुप. सिमिलरली फास्फोरस में अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस में आपका वेकेंट p है, सॉरी वेकेंट d है, राइट. सो दैट्स व्हाई ये भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले सकता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन में आ जाएगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन में आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका जो है वो कार्बन में आ जाएगा. So these all groups are acting as an electron withdrawing group via delocalization, obviously not via inductive effect. We are not talking about inductive effect, rather this is a different type of a group. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका वो शॉर्ट रेंज इफेक्ट है, और मेसोमेरिक इफेक्ट आपका जो है पूरा मॉलिक्यूल में लाई कर सकता है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि कैसा डिलोकलाइज हो रहा है वो पूरे रिंग में आप फैल सकता है, ठीक है. हालांकि बाकी इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका 2 या 3 कार्बन के बाद वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. Also we have seen in general organic chemistry there are certain groups which will be acting as a both plus m and minus m group, ठीक है. तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़ के नहीं है इस चैप्टर के लिए, हालांकि हाँ स्टेटमेंट लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं. इस चैप्टर के लिए हमारे लिए ये ग्रुप्स जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है. सो ऐसे ग्रुप्स हैं ये जिनमें आपका लोन पेयर भी है, और लोन पेयर के साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है. तो नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है कि कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लिए भी जा सकते हैं बेंजीन रिंग से, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे सल्फर के पास भी अगर आप देखोगे तो दिस इज डिफरेंट, ऑलराइट. ये जो हमारा सल्फर था, ऊपर वाला जो सल्फर था, दिस वाज SO3H, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है नीचे, दिस इज SO2H. तो यहाँ पे आपका जो है एक ऑलरेडी लोन पेयर भी है
जो कि डोनेट कर रहा होगा, और साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी है जो कि एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। और सल्फर में लोन पेयर डोनेट भी किया जा रहा है। सिमिलरली ऊपर भी ऐसे ही हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया भी जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस में भी ऐसे किया जा सकता है कि फॉस्फोरस में लोन पेयर है तो दैट लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, और आइदर इसमें वेकेंट पी है तो वेकेंट पी से ये इलेक्ट्रॉन जो है ले भी सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स अपना प्रोवाइड भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट हमारे लिए जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे क्या होता है डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप, बट इससे पहले वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन लैटर चैप्टर्स एज वेल। सो इलेक्ट्रोफाइल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, तो दे विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड मोस्टली दे विल बी लुईस एसिड, राइट। सो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रोफाइल्स इज अ रिएक्टेंट दैट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। एंड अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की बात करो दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर एट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड और जस्ट एन एसिड, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रोफाइल्स को जस्ट एसिड भी बोला जा सकता है बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑलराइट। सिमिलरली अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो दे आर लुईस एसिड, जैसा कि मैंने बोला, ये आपका कार्बोकेटायन हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, बोरॉन में वेकेंट पी है, फिर SO3H हो सकता है, ठीक है, H2SO4 हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे भी आपका जो सल्फर है उसमें भी वेकेंट ऑर्बिटल है, एल्युमिनियम में भी वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट पी, और सल्फर में वेकेंट डी है। अदर एग्जांपल्स भी देख सकते हैं हम लोग, कोई भी जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और वेकेंट ऑर्बिटल हो बेसिकली, सो NO2 प्लस भी हो सकता है, SO3 हो सकता है, X प्लस हो सकता है, और X2 हो सकता है, वेर X इज हैलोजन, ठीक है। तो जैसे F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, या फिर F2Cl2 Br2। हम लोगों ने Br2 का एग्जाम्पल देखा है एल्कीन्स में, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे थे कि एल्कीन में Br2 CCl4 से रिएक्शन कराते थे तो एंटी एडिशन होता था, तो वहां पे भी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था दैट इलेक्ट्रोफाइल वाज Br2, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे X2 भी जो है एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम लोग बोल सकते हैं। नॉट फॉर फ्लोरीन, F2 को नहीं बोल सकते कि दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, राइट। तो इसमें भी जो X है आपका, दैट X इज डिपेंडिंग ऑन कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तो इसमें X2 में जब आप इलेक्ट्रोफाइल क्लासिफाई कर रहे होगे तो उसमें क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, आई मीन टू से Cl2 Br2 एंड I2, राइट। F2 नहीं आएगा क्योंकि उसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हालांकि हाँ F प्लस आता है तो दैट F प्लस कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, राइट। The next one is nucleophile. As the name suggests, nucleophiles का मतलब होता है nucleus loving, ठीक है। तो they will have a excess of electrons. So it is a reactant that produces a pair of electrons to form a new covalent bond, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें कि ये nucleophiles will be Lewis bases, alright, or when a nucleophile donates a pair of electron to proton like H plus, it is a Bronsted base or simply base, ठीक है, क्योंकि वो H प्लस को डोनेट करेगा। नॉर्मली हम लोग H प्लस के बेसिस पे बात करते हैं तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस इसको बोला जाता है, ठीक है। सो जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हाइड्रोजन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब लोन पेयर अगर हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा है तो जो डोनेट कर रहा है दैट इज अ बेस और जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एसिड, राइट। और वहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस इसको क्या कहा जा सकता है, ठीक है। दैट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, या फिर आप एक बार एनसीईआरटी जो है पढ़ सकते हो ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दैट विल गिव यू एन आइडिया। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें लुईस बेस का एग्जांपल क्या क्या है, तो वी हैव OH माइनस, SR माइनस, Cl माइनस,
नाइट्रोजन भी हो सकता है बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और सी माइनस भी हो सकता है, दैट इज सी माइनस। न्यूक्लियोफाइल्स का जो क्लिसिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विच इज अल्काइल हैलाइड। हमारे लिए उसमें न्यूक्लियोफाइल्स के ज़्यादा रोल्स है, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस जगह जो है हम लोग अभी इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। Now let's discuss about the directing and the activating groups. इस directing और activating groups में जो है हमारा यूज किसके लिए हो रहा है वो हम देख लेते हैं। कि अगर हम वैसे ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेंजीन रिंग में अटैच्ड है, ठीक है, उस ग्रुप की वजह से देयर विल बी सर्टेन इफेक्ट्स, alright, and the incoming electrophile will be directed to certain positions. For example, अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एग्जांपल्स, एक्टिवेशन और डायरेक्शन का, तो जैसे मान लो कि वैसे ग्रुप्स which are donating by conjugation, which is donating by resonance और प्लस एम ग्रुप्स, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे Nr2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनमें लोन पेयर है, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, ठीक है। These will be known as very activating group because they are going to increase the electron density at ortho and para position with a very high extent, ठीक है, so they will be very activating. और इसमें अगर डायरेक्शन देखेंगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, तो द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन ओनली, ठीक है, मेटा पोजिशन पे अटैच नहीं होगा, वी नो दैट। सेकंड देखते हैं विच इज डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे प्लस आई हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नीडेड टू क्लोज सम फ्यू विंडोज ताकि बाहर से कंस्ट्रक्शन की आवाज ना आए। एनीवे, सो नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल प्लस आई जो हमें दे रहा है विच इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और मोस्टली हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, राइट, सो these will be known as activating group. They will increase the electron density at ortho and para position, but not as much as plus M group. All right, or such groups which is donating by conjugation. So mostly the incoming electrophile will be directed towards ortho or para position, but some meta positions में भी जो है हमने देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर के अटैच हो रहा है। मैं डिस्कस कर लूंगा जहाँ पे मेटा पोजीशन आएगा वहाँ पे कि ये कहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रुप इज डोनेशन बाय conjugation but withdrawal by inductive effect. In this category, the halogens are only examples, which is fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are known as deactivating group. हालांकि ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं लेकिन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहे हैं। सो मोस्टली जो इस हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका ज़्यादा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया जा रहा है, ठीक है, बाय कॉन्जुगेशन। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच्ड एट ऑर्थो एंड मोस्टली पैरा पोजीशन पे जो है आपका मोस्टली अटैच होगा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट लग सकता है ना, तो इसीलिए जो है मोस्टली आपका पैरा पोजीशन जो है मेजर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन प्लस एम की वजह से वही ना कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट टू कैटेगरीज, ठीक है। तो माइनस आई से जो है, हाँ आप ये भी कह सकते हो कि माइनस आई लग रहा है इसीलिए ऑर्थो पोजीशन में नहीं जा रहा है, वो पैरा पोजीशन पे जा रहा है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप यही सोचो ना कि इंडक्टिव इफेक्ट से कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे पड़ेगा ना, फिर मेटा पे पड़ेगा, फिर पैरा पे पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, राइट। So that's why they are known as deactivating groups.
anyway, so the next is the withdrawal by inductive effect, जो minus I लगा रहे हैं, like for example CF3 or NR3, they are not donating anything, right? They are just withdrawing. They will be known as deactivating groups, and mostly the incoming electrophile will be attached at the meta position. ठीक है, और फिफ्थ कैटेगरी है हमारे पास विड्रॉल बाय कॉन्जुगेशन, जो कि -m शो कर रहे हैं, लाइक NO2 CN COR SO3H, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. They will be very deactivating and they will decrease the electron density at ortho and para position. That's why the incoming electrophile will be attached at the meta position. So ये जो आपका टेबल है ना, ये टेबल आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना है या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना है. ठीक है, सो इस पे हम कभी कभी बीच बीच में आते रहेंगे ताकि हम जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म यही होगा कि बेंजीन रिंग है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग में किसी एक जगह, और आपका जो एरोमेटिसिटी है वो एरोमेटिसिटी लूज हो गया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में. फिर ये रेजोनेंस शो कर सकता है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. पॉजिटिव चार्ज को जो है वो रोटेट करवा सकते हैं, है ना. फिर यहाँ पे भी आ गया ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसको अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर इसका बनाते हैं, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में हम लोग ये जो डॉट 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 का सर्कल दिखा रहे हैं, ये सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्जुगेशन किन किन कार्बन्स में है. ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका आउट ऑफ 6 कार्बन 5 कार्बन आर इन कॉन्जुगेशन और एक कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है, इसलिए इस कार्बन पे जो है वो डॉट डॉट नहीं आ रहा है. राइट, सो नॉर्मली जो है हम लोग बेंजीन क्या करते हैं, पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं. तो पूरा सर्कल ड्रॉ करने का हमारा यही मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन इज कवरिंग ऑल द एटम्स, यहाँ पे ऑल द एटम्स में कवर नहीं कर रहा है, इसलिए इस पोजिशन को छोड़ दिया है. ठीक है, और ओवरऑल इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है आपका. राइट, सो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज एन इंटरमीडिएट विच इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलैंड इंटरमीडिएट. ठीक है, ऐसे इंटरमीडिएट को जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन लगा हो और पॉजिटिव चार्ज जो है 5 कार्बन पे के साथ जो है कॉन्जुगेटेड हो. राइट, और फाइनली जाकर के ये जो वीलैंड इंटरमीडिएट है वो अपना एरोमेटिसिटी फिर से दोबारा गेन करेगा बिकॉज इट हैज लूज्ड समवेयर इट्स एरोमेटिसिटी इन द मिडल. ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी जब फिर से दोबारा गेन करेगा तो यस दिस इज आर्ग्यूएबल कि कौन सा स्टेप जो है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग है या स्टेप 2 रेट डिटरमाइनिंग है. दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन आइदर स्टेप 1 और स्टेप 2 विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन जज कि हमारे पास क्या हो सकता है. मान लो कि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि अगर ऐसे रिएक्शंस हो जिसमें स्टेप 1 आपका जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. ठीक है, तो स्टेप 1 अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो हम लोग एक चीज से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसकी जगह दिस इज C6H6, राइट, दिस इज C6H6. तो हम लोग अगर C6D6 ले लें तो नेचर ऑफ द बॉन्ड विल बी चेंज फॉर द सेकेंड रिएक्शन. यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा. ठीक है, और इन दोनों का रेट अगर हम लोग फाइंड कर लें, इसका रेट और इसका रेट, और दोनों के रेट को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर C6H6 यूज किया और उसका रेट सपोज R आया और C6D6 अगर यूज किया तो इसका रेट मान लो R2 आया, R1 R2 ले लेते हैं, और R1 इज इक्वल टू R2. तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड स्टेप है दिस इज नॉट RDS. समझ में आ रहा है, ये स्लो स्टेप नहीं होगा या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा, तभी तो आपका रेट 1 इक्वल्स टू रेट 2 आ रहा है. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप हाइड्रोजन रखो ड्यूटेरियम रखो, ये स्टेप सेम रेट से जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. लेकिन अगर ये आपका R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2 आया तो इसका ये मतलब है कि द सेकंड स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऑलराइट,
क्योंकि आपने जैसे ही नेचर ऑफ द सी एच बॉन्ड चेंज किया वो रेट चेंज हो गया, क्योंकि सेकेंड स्टेप में जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग जो नेचर है सी एच बॉन्ड का उसको चेंज करके देख सकें तो उसके बाद हमें रेट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या फिर नहीं है। तो ये एक मेथड है और ये एक बहुत ही फेमस मेथड है विच इज नोन एज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, आइसोटोप्स जब हम यूज करेंगे उसकी वजह से अगर कोई काइनेटिक्स में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो रेट है वो रेट डिफरेंट आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट। अगर ये रूल है तो if R1 is not equals to R2 then the reaction is showing kinetic isotopic effect and because of that the rate will be different for that। ठीक है, और अच्छे एग्जाम्पल तरीके से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जब हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाइट्रेशन। यहाँ पे हम लोग HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, या फिर हम लोग HNO3 और HNO2 यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे जनरेट होता है दैट इज NO2 प्लस इसके लिए, और इसके लिए जो जनरेट होता है वो NO प्लस के तौर पे जनरेट होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग हैलोजन देखें तो हैलोजन के लिए X2 और AlCl3 या FeBr3 यूज करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग कोई लुइस एसिड ले सकते हैं जो कि मेटल है, विच इज MX3 टाइप कोई भी मेटल ले सकते हैं, ZnCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है, BF3 ले सकते हैं, BH3 ले सकते हैं, कोई भी लुइस एसिड ले सकते हैं। वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बोला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही जो है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकता है, Cl2, Br2 एंड I2। सो इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे जो है आपका वो X2 है। सल्फोनेशन है नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H है। ठीक है, सो ये सब जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये आप अगर ध्यान में रखो तो बेटर है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग कोई अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं और एक लुइस एसिड यूज कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग AlCl3 यूज करते हैं, ठीक है, या AlX3, राइट। बट हाँ, एनीवे अदर लुइस एसिड्स कैन आल्सो बी यूज, बट उसके इफेक्ट्स होते हैं कुछ जो कि हम लोग डिटेल में देखेंगे जब वी विल बी क्लासिफाइंग दिस रिएक्शन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका वो कार्बोकेटायन है, so दैट कार्बोकेटायन में रीअरेंज डिपेंडिंग ऑन कि कैसा लुइस एसिड है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में वी आर यूजिंग असाइल ग्रुप विच इज CH3, या फिर ये ग्रुप जो है वो आपका असाइल ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस इज असाइल ग्रुप, ये। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका रिएजेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं दैट रिएजेंट इज RCOX, मोस्टली RCOCl यूज करते हैं एंड वी आर यूजिंग AlCl3 एज अ लुइस एसिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपको मिल रहा है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल है आपका RCO प्लस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल में जाकर के बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि कैसा ग्रुप लगा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे या फिर मेटा पोजीशन पे लगने वाला है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एज सच जो हम यूज कर रहे थे वो HNO3 यूज कर रहे थे और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे थे। तो पहले इसका देख लेते हैं HNO3 और H2SO4 का, फिर उसके बाद जो हम लोग वापस दोबारा देखेंगे दूसरे कुछ किसी चीज का। ठीक है, सो इसमें एक रिएक्शन देखिए कैसा होता है। HNO3 में स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 is
नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका ऑक्सीजन का आता है। ठीक है, तो इसमें OH लगा है एंड दिस OH विल बी प्रोटोनेटेड बाय H2SO4, राइट। सो इट विल प्रोड्यूस H2O प्लस। ठीक है, जो H2O प्लस विल लीव, ठीक है, ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाएगा एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड NO प्लस विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आकर के यहाँ प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करने के बाद H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है, सो दैट्स वाई ये जो है आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ जो H2O निकला दैट H2O विल टेक H प्लस फ्रॉम H2SO4 और ये H3O प्लस बनाएगा और एक HSO4 माइनस बनेगा। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को लिखेंगे हम लोग तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, सो 1:2 के रेशियो में रिएक्शन करेंगे HNO3 और H2SO4 एंड वी विल बी गेटिंग NO प्लस H3O प्लस एंड 2 HSO4 माइनस। ठीक है, यहाँ जो NO प्लस है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसका जब वैंटा फैक्टर निकाला गया तो दैट वैंटा फैक्टर केम आउट टू बी 3.82 विच इज क्लोज टू 4। हम लोग इसको नॉर्मली 4 ले सकते हैं। ठीक है, सो आई गेस कि आपको वैंटा फैक्टर पता होगा और सॉल्यूशन चैप्टर्स में, हाँ एग्जैक्टली हम लोग कर लेंगे वैंटा फैक्टर जो भी है। So basically Vanta factor is nothing but that is the number of the particles which a solute is dissociated into. जैसे NaCl है तो NaCl will be dissociated into Na plus and Cl minus. So depending on the ionization, कैसा ionization हो रहा है, अगर 100% ionization हो रहा है तो then the NaCl will have a Vanta factor 2. ठीक है, so यहाँ पे जो आपका Vanta factor है which is slightly less than 4, so that may be because of the incomplete ionization of H2SO4. Alright, so यहाँ पे H2SO4 का आप रोल क्या देख सकते हो। H2SO4 का रोल है that H2SO4 is not reacting with benzene, right, और यहाँ पे जो आपका HNO3 है that HNO3 is acting as a base, right, क्योंकि ये H plus accept कर रहा है नहीं, और H2SO4 क्या कर रहा है, H2SO4 आपका जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहा है। Alright, because concentrated H2SO4 act as a good dehydrating agent, right, ये हम लोगों ने देखा था जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, उसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में आता है, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ना तो HNO3 डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है बेंजीन रिंग से, ना तो डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। दे आर रिएक्टिंग among themselves where H2SO4 is acting as an acid and HNO3 is acting as a base and H2SO4 is जो भी है H2SO4 is consuming water molecule, ऑलराइट। और इसका मैकेनिज्म अगर देखो तो वही 2 स्टेप का मैकेनिज्म हमारे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड स्टेप 2 में जो है होगा हमारा दैट विल बी द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन टू गेन एरोमेटिसिटी। तो द फर्स्ट इज कि नाइट्रोजन NO प्लस आया, ये NO प्लस आने के बाद यहाँ पे अटैच हो गया, अटैच होने के बाद जो है फिर ये रिएक्शन में H प्लस निकल जाएगा और H प्लस निकलने के बाद आपका नाइट्रोबेंजीन मिल गया। ठीक है, ये भी आपका जो है वो वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, राइट। और ये कार्बन जो है कॉन्जुगेटेड नहीं है बिकॉज दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें जो देखा गया विच इज द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप और द सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। ये कैसे पता किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने वही काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से पता किया। तो बेसिकली क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो एनी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सो जैसे हम लोगों ने C6H6 के साथ इसका रिएक्शन कराया HNO3 का, तो इसका रेट कांस्टेंट KH मान लिया। ठीक है, C6D6 के साथ रिएक्शन कराया HNO3 का, तो इसका KD मान लिया जो भी रेट कांस्टेंट है। इनके रेट कांस्टेंट को जब कंपेयर किया ना तो ये रेट कांस्टेंट आया इक्वल्स टू 1। तो ये सजेस्ट करता है कि आपका जो ये हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने वाला स्टेप है, ठीक है, ये दोनों आप ये हाइड्रोजन चेंज करके ड्यूटेरियम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रेट दोनों का सेम होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो और इट शोज नो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ऑलराइट, सो जैसे कि 2 पॉइंट्स मैंने पहले बोला था, H2SO4 एब्जॉर्ब्स द वाटर मॉलिक्यूल, ये इसकी प्रॉपर्टी है।
सेकंड इज नाइट्रेशन इज स्लो इन द एब्सेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 नहीं होता तो दिक्कत होता, अदरवाइज फिर H2SO4 अगर नहीं होगा तो HNO3 और HNO3 दोनों को जो है आपस में ही रिएक्ट करना पड़ेगा, वेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 विल एक्ट एज अ बेस एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 विल एक्ट एज एन एसिड. ऑलराइट, so H2SO4, the presence of H2SO4 is important because आपका जो है H2O प्रोड्यूस हो रहा है, वो H2O जो है आपको कंज्यूम करवाना है. So H2SO4 is acting on HNO3 rather than C6H6. बेंजीन में रिएक्शन नहीं हो रहा है ये, ठीक है. देखो यहाँ जैसे H2O ये प्रोड्यूस हो रहा है तो ये H2O जो है आपका H2SO4 कंज्यूम करेगा और ली चार्टली प्रिंसिपल से जो है ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाता जाएगा, राइट. So the cleavage of CH is faster by HSO4 minus. HSO4 minus ये यहाँ पे ये वाला स्टेप में आता है और ये कंज्यूम कर लेता है HSO4 minus यहाँ से, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो है आप रिएक्टेंट देखो जो हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट, एक्चुअली ये रिएजेंट HSO4 minus प्रोड्यूस कर रहा है, यही HSO4 minus आकर के यहाँ से आपका H plus निकाल करके लेके चला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द क्लीवेज ऑफ CH इज फास्ट बिकॉज द रिंग इज गेनिंग एरोमेटिक कंडीशन, राइट. तो ये स्टेप फास्ट भी है क्योंकि आपका एरोमेटिक कंडीशंस जो है फिर से दोबारा गेन हो रहे हैं. तो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला और इसको 3 बोला. ऑन दैट बेसिस हम लोग इसका एक एनर्जी कर्व देख लेते हैं कि इसका एनर्जी कर्व कैसा आएगा. क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट्स व्हाई आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर इन कंपैरिजन टू द सेकंड स्टेप. ये आपका फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये आपका सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है. तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज मोर या फिर हायर इन कंपैरिजन टू द सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है. सो इस कर्व में भी ऐसे ही होगा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट विच इज रिएक्टेंट, ये सेकंड विलाइन इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये थर्ड जो है आपका वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. इसका जब हम लोग रेट लिखेंगे तो रेट कैन बी रिटन फॉर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग के ये बेंजीन AR मतलब अराइल ग्रुप और हाइड्रोजन लगा हुआ है और NO प्लस इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपका रेट. अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने एक और देखा था HNO2 और HNO3 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही होगा कि जो आपका HNO2 है वो HNO2 में OH और NO ऐसे लगा होगा. ये इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 आपको H प्लस प्रोवाइड करेगा. ये H प्लस प्रोवाइड करने से यहाँ बन गया H2O प्लस और NO, ठीक है. ये फिर दोबारा जो है ये टूटेगा, ब्रेक होगा इनटू H2O एंड NO प्लस. तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है NO प्लस और ये NO प्लस जाकर के अटैच हो जाएगा आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में. अगर हम फिनॉल ले रहे हैं तो यहाँ पे NO लग गया, लेट्स से कि पैरा में जाकर के ये अटैच हुआ. पैरा में अटैच होने के बाद HNO3 क्या है, HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. है ना. तो आपका HNO3 जो है एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो NO है दैट NO इज ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइज होने के बाद अल्टीमेटली ये जाकर के NO2 में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. सो ये रिएक्शन भी आपको है वो NO2 ही बना करके देगा फाइनली. नेक्स्ट देखते हैं विच इज हैलोजन, ठीक है. आई गेस कि दो तीन करके हम लोग अगर कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे फर्स्ट हम लोगों ने नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन एक साथ देखेंगे, फिर सल्फोनेशन और अल्फ्रेडल क्राफ्ट जो है एक साथ देखेंगे, उसके बेसिस पे दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करते हैं. एनीवे, सो हैलोजिनेशन में हम लोग जो है X2 यूज कर रहे हैं, वेयर X2 इज आइदर Cl2 Br2 I2 और इसके साथ AlCl3 या FeBr3 यूज करते हैं. सो क्लोरीनेशन जो है इट शोज नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट. मतलब इसका ये मतलब है कि जो आपका सेकंड स्टेप है
दैट सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्लोरीनेशन में जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ब्रोमिनेशन में भी जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पे रेयरली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है, लेकिन हमें दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमें एग्जामिनेशन में पूछा कि ब्रोमिनेशन क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा, तो वी विल से नो, इट विल नॉट शो। ठीक है, ये बुक्स में लिखा हुआ रहता है नॉर्मली टेक्स्ट में, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिखा है। तो क्लियरली वी शुड से कि ब्रोमिनेशन डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन जो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। इट मींस कि जो सेकंड स्टेप है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, द स्टेप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का एज सच सेम मैकेनिज्म है, आयोडीनेशन का थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है। मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन का दिखाया है, आप क्लोरीनेशन भी ले सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप में यही होगा, बेंजीन में ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड, राइट, जैसे कि वो एल्कीन में हो रहा था। राइट, इस अट्रैक्शन के बाद पोलराइज होगा, ब्रोमीन का जो बॉन्ड है ब्रोमीन ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन के बॉन्ड में से एक ब्रोमीन चला जाएगा FeBr3 के साथ, क्योंकि FeBr3 इज अ लुईस एसिड, इट विल एक्सेप्ट लोन पेयर्स। राइट, सो यहाँ पे आपका ये एक वीलैंड इंटरमीडिएट बन गया और FeBr4 माइनस बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी अ फास्ट स्टेप, और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद HBr बन गया और FeBr3 बन गया, तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया। राइट, इसका अगर हम लोग रेट देखेंगे तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो वी कैन से कि द रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, concentration of the halogen X2 and the concentration of the Lewis acid। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आयोडीनेशन देखें तो आयोडीनेशन में क्या हो रहा है कि फिनॉल में आयोडीनेशन करा रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप, क्योंकि ये जो है आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाएगा। और ये गलत क्यों आ रहा है, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाएगा, और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाने के बाद ये जो है आपका कुछ ऐसा स्पीसी बनेगा। इसके पैरा पोजीशन में अटैच कर रहे हैं क्योंकि OH जो है आपका वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। राइट, सो पैरा में लगा रहे हैं इसमें पहले। ओके, सो ये वीलेंट इंटरमीडिएट के साथ I माइनस भी अटैच होगा, इसी वीलेंट इंटरमीडिएट के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के रहेगा जस्ट लाइक सॉल्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी अ स्लो स्टेप, सो आयोडीन जो है यहाँ पर पे आकर के लग जाएगा जो है आपका पैरा पोजीशन में है। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि आयोडीनेशन तभी पॉसिबल है जब आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग में, जो आपके कैटेगरी 1 के हैं ग्रुप्स, वो सारे ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे तभी आयोडीनेशन इज पॉसिबल। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द आयोडीनेशन यू कैन सी कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको लुईस एसिड की कोई ज़रूरत नहीं है आयोडीनेशन कराने के लिए अगर आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे FeBr3 यूज़ किया था ऊपर में, लेकिन यहाँ पे FeBr3 यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे देखिए अगर बेंजीन रिंग में Br2 FeBr3 कराएं तो ब्रोमिनेशन होगा, Br2 या AlCl3 कराएं तो ब्रोमिनेशन होगा, Br2 या आयरन पाउडर के साथ कराएं तब भी ब्रोमिनेशन होगा। सो इट मीन्स दैट या फिर इट शोज दैट कि ब्रोमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ठीक है, अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा हो तो। सो इसमें भी यही चीज दिखा हुआ है कि बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एक्सेप्ट विद लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर फिनॉल हुआ तो फिनॉल विल रेडली रिएक्ट विद ब्रोमीन, उसमें हमें कोई भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। Br2 जो है हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, एक ही बार अगर ऐड करेंगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए ब्रोमिनेशन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज करते करते ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट कलर इज येलो एंड दैट कलर स्लोली डिसअपियर्स बिकॉज रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है, आपका ब्रोमीन अब बचा नहीं है रिएक्शन में, तो डेफिनेटली येलो कलर जो है वो वैनिश हो जाएगा।
अगर वाटर ऐड करेंगे ब्रोमिनेशन के साथ साथ, Br2 ड्रॉप वाइज ऐड करने के साथ साथ, तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो Br2 का आपका येलो कलर हो गया और वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है वो बनेगा अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे। इस रिएक्शन को ऐसे देख सकते हैं, देखो जैसे फिनॉल में अगर हमने Br2 और वाटर ऐड किया है इन पोलर मीडियम लाइक अल्कोहल यूज कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, राइट। यही चीज अगर हम लोग एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में करें और लाइक CS2 डाइमिथाइल सल्फाइड, सॉरी डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है, कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। सो और इसका टेम्परेचर अगर हम लोग 5 डिग्री से कम रखें तो ये बस एक ही जगह आपका ब्रोमीन अटैच होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने फिनॉल की जगह एनिलीन ले लिया और सेम रिएक्शन कंडीशन है Br2CS2 लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये ब्रोमीन जो है वो तीनों जगह अटैच हो जाता है। इन दो रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, जो कि हम लोगों ने पहले भी ये एनालाइज कर लिया है, मतलब ये रिजल्ट आया है हमारे दिमाग में, ये है कि बेटर डोनर कौन है, NH2 बेटर डोनर है या OH बेटर डोनर है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेटर डोनर जो आपका है वो NH2 है ना। अगर आपको ध्यान हो लेक्चर या फिर जो भी आपने जैसे समझा होगा, उस समझने की बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव लगेगा, ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव लगेगा, राइट। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन में पॉजिटिव, दैट्स राइट। जो NH2 है दैट इज अ बेटर डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आपका जो एनिलीन है दैट इज अ बेटर डोनर। एनिलीन में जो NH2 है वो NH2 का जो लोन पेयर होगा दैट विल बी बेटर डोनेटिंग देन OH, सो एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, ऑलराइट। ये इसका एक प्रूफ है, राइट। देखो कुछ रिएक्शंस देखते हैं, इनमें कोई डाउट है तो बताओ, नाइट्रेशन और आपका हाइड्रोजनेशन में। अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है कि ऑर्थो में लगेगा या पैरा में लगेगा। ओके, ठीक है, तो आप सही बोल रहे हो एक तरीके से कि आपका इसमें पैरा में लगना चाहिए। ठीक है, पैरा में मेजर तभी होगा जब ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्थो विल बी मेजर, अदरवाइज यू आर गुड टू गो, मतलब सब में आप पैरा एकदम आंख बंद करके जो है वो लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए आपका ऑर्थो वाला जो है वो ज्यादा मेजर है, जो कि कुछ ही केसेस में है। आपको ये केस बस देख लेना यार कि ऑर्थो लगा करके कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर OH ऐसा ग्रुप अगर आपको दिखा, जैसे OH दिखा या COH दिखा, ऐसा ग्रुप, सो ये जो परसेंटेज है आपका 36% ये बनेगा, 25% ये बनेगा, बाकी का जो भी है आपका वो प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे मेटा पोजीशंस पे जो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, जैसे CH3 हो गया, अगर हमने टॉल्यूइन के साथ करा रहे नाइट्रेशन तो कहाँ लगना चाहिए ये, मेटा पे लगेगा। CH3 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 को कौन सा कैटेगरी में बांटे, फिर से दोबारा वापस जाते हैं उस टेबल पे, ये टेबल देखो, हाँ पैरा पे जाएगा नहीं।
तो CH3 जो है आपका वो प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे टेबल में है वो सेकंड कैटेगरी का है, विच इज डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। सो दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। And since this is activating group, the incoming electrophile must be attached to either ortho or para. ऑर्थो में हम परहेज कर रहे हैं क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उसकी वजह से जो आपका रेजोनेंस है वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, तो इसीलिए पैरा में जो पैरा बनेगा वो मेजर होगा, ठीक है। नॉर्मली ये देखा भी गया है कि पैरा इज मेजर बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सी देखो, कहाँ लगा है? मेटा में लगाएंगे क्योंकि NO2 जो है, NO2 जो है आपका वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है टेबल में? हाँ, वेरी डीएक्टिवेटिंग ना, फिफ्थ कैटेगरी में आ रहा है। हाँ ये देखिए, ये फिफ्थ कैटेगरी, तो सीधा ये जा करके आपका जो है मेटा पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डी देखो, डी में क्या होना चाहिए? बिल्कुल, दोनों के मेटा पोजीशन पे लगेगा, राइट। तो ये आपका जो है 2 4 6 2 4 6 या फिर 1, अच्छा 1 2 3 1 3 और 5 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा आपका, नहीं। नेक्स्ट ई में देखो, ई में क्या होने वाला है? मेटा में आगे भी लग जाएगा, राइट। इजी लग रहा है, ठीक है। अब तो बस आपको ये देखना है कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है या फिर माइनस एम शो कर रहा है, उनके बेसिस पे आप लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो कि एक से ज्यादा बेंजीन ग्रुप है तो फिर क्या करेंगे, या फिर ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे आपका पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो कि मेटामेरिज्म शो कर सकता है। तो इस एग्जांपल में देखिए कि इस बेंजीन रिंग के लिए इसको बेंजीन रिंग 1 कह देते हैं और इसको बेंजीन रिंग 2 कह देते हैं। तो बेंजीन रिंग 1 में ये ग्रुप कैसा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? सी डबल बॉन्ड लो, प्लस एम या माइनस? डीएक्टिवेटिंग, ये माइनस एम शो करेगा, राइट। और सेकंड बेंजीन रिंग के लिए ऑक्सीजन कैसा कैसा शो करेगा इफेक्ट? एक्टिवेटिंग शो करेगा, विच इज प्लस एम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट बेंजीन रिंग है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ किया गया है, और सेकंड बेंजीन रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए? सेकंड वाले में जाना चाहिए, राइट। तो सेकंड वाले में कहाँ पे लगा है? ऑर्थो में लगा है, पैरा में लगा है या मेटा में लगा है? ऑर्थो या फिर पैरा में लगा है, ठीक है। मेजर क्या होगा आपका? पैरा हो जाएगा मेजर, राइट। फिर से वही रीजन, जो NO2 आएगा वो NO2 ऑर्थो इफेक्ट शो कर सकता है, इसकी वजह से हम इसको पैरा में लगा देते हैं, ठीक है। फिर जी में आ जाओ, जी में मैं नंबर कर देता हूँ इनमें, बेंजीन रिंग में 1 2 कहाँ पे लगाए? दो ही पोजीशन है, टू पे लगेगा, राइट। क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप, दोनों ग्रुप जो है वो
माइनस एम शो कर रहा है, तो दे विल बी मेटा डायरेक्टिंग, है ना, मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग हो तो आपका ये सेकंड वाला पोजीशन मेटा पोजीशन है ना, इसके इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये मेटा पोजीशन हो गया, ठीक है। साथ में ही और भी एक चीज इसमें ये अप्लाई हो रहा है कि आपका जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, ये तो CH2 ग्रुप है ना, तो ये तो प्लस आई शो करेगा, राइट। जो प्लस आई शो करता है वो कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये वाला फैक्टर भी काम कर रहा है ना, तो आपका यहाँ पे NO2 लग जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो, फिर से वही 1 और 2 वही लगाया, यहाँ पे 1 पे लग जाएगा, बिल्कुल। मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पे ऊपर में भी वही चीज हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर आपके पास जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, अगर बेंजीन आपका मल्टी सब्स्टिट्यूटेड है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लगेगा वो लगेगा आपका जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्लस एम ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वो आपका माइनस एम ग्रुप है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके रेस्पेक्ट। यहाँ पर भी वही हो रहा था, इसके ऊपर में जो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू दिस। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो है वो लगा रहे थे। नेक्स्ट देखो P1 और P2, बताइए क्या होगा। P1 क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, और P2 क्या हो जाएगा, मेटाब्रोमोनाइट्रोजन। तो ये आपका P1 हो गया और ये P2 हो गया, राइट। तो ये ओरिएंटेशन जो है आपका, ये इस ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जो आपका एक कॉन्सेप्ट है विच इज ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो पोजीशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज गवर्न्ड बाय मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ग्रुप, ओके। तो अगर एक से ज्यादा लगा है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में अगर आपका 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये प्लस आई शो कर रहा है और ये प्लस एम शो कर रहा है। तो प्लस एम के रेस्पेक्ट में जो है हम लोग ब्रोमीन अटैच कराएंगे, ना कि प्लस आई के रेस्पेक्ट में, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसके रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो ऑन दैट बेसिस देखते हैं, देखो एम है, इसमें मैं नंबर कर देता हूँ, कार्बन 1 2 3 4। कहाँ पे लगना चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप, 4 पे। बिल्कुल बिल्कुल 4 पे लगेगा, NO2 होना चाहिए, गलत है। तो ये आपका जो है वो प्लस आई शो कर रहा है और ये आपका माइनस एम शो कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो 2 पे भी लगा सकते हैं और 4 पे भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली हमने पैरा देखा है, तो पैरा पैरा जो आपका मेजर होता है, इसलिए पैरा पोजीशन पे लग रहा है, CH3 के पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर के रेस्पेक्ट।
बी में आ जाओ, कहाँ लगना चाहिए NO2, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं। वन या फोर पे लगेगा, राइट, क्योंकि वन और फोर जो है आपका सिमिलर पोजीशन, ठीक है, तो NO2 यहाँ लगेगा, और आपका जो है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ सी पे, सी में भी नंबरिंग कर देते हैं। कहाँ लगना चाहिए, टू पे, ओके, ठीक है। तो टू पे देखो कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई, ठीक है। और ये जो OCH3 है ये कैसा कैसा ग्रुप है, प्लस है, तो किसके रेस्पेक्ट में लगना चाहिए, तो कहाँ लगेगा फिर, वन पे ना, हाँ वन पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डी में, डी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लासिफाई कि कौन से बेंजीन रिंग में लगना चाहिए। लेट्स कॉल इट बेंजीन रिंग 1, 2, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में लगेगा। तो जो फर्स्ट वाला बोल रहे हैं वो सोच के देखो कि ये ग्रुप कैसा है, बताइए क्या शो करेगा, प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, क्या शो करेगा, माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। और ये वाला ग्रुप कैसा है, प्लस एम शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टू में होगा, नहीं, तो सेकेंड वाले में कहाँ पे लगा है, और पैरा तो खाली नहीं है, ऑर्थो ही खाली है, तो ऑर्थो पोजीशन में कहीं लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे, इसमें बताइए कौन से कार्बन पे लगेगा, वन या टू, वन पे लगेगा, ठीक है। तो ICl मतलब है आई प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो आई प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जा करके आपका फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो F कहाँ लगा है, ब्रोमीन, Br2 FeBr3 यूज कर रहे हैं, मेटा पे, बिल्कुल NO2 के मेटा पे पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं जी में, जी में फिर से वही क्लासिफाई करते हैं, दो बेंजीन रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग 1, बेंजीन रिंग 2, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये दिस विल बी शोइंग प्लस एम, ठीक है। और ये ग्रुप जो है आपका माइनस एम शो कर रहा है, राइट। तो सेकंड में कहाँ पे लगा है, ऑर्थो में लगा है या फिर पैरा में लगा है, कहाँ लगा है, पैरा पे लगा है, राइट। तो पैरा क्योंकि मेजर ले रहे हैं हम लोग, तो पैरा ही लगा देते हैं मेजर।
पैरा पे लग गया। नेक्स्ट वाला देखो एच, एच में कहाँ पे लगाना चाहिए, 1 2 3 4 3 पे, मतलब ओ एच के जो है आपका पैरा पोजीशन ओ एच के रेस्पेक्ट में लगाएंगे नहीं, जो कि यहाँ पे सी ओ सी एच सी ओ एच के रेस्पेक्ट में भी काम आएगा, उसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं काम। ठीक है, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इज ओ एच, सी ओ एच इज माइनस एम ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए होगा राइट, बिकॉज इसमें नाइट्रेशन में देर इज नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ड्यूटेरियम रखो ट्रिटियम रखो, द रेट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सल्फोनेशन, व्हिच इज नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो आपस में रिएक्ट करेगा, H2 टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, it will produce SO3, H3O plus and HSO4 minus। जो आपका SO3 है that will be acting as an electrophile, और इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में फिर से वही बेंजीन रिंग में SO3 रिएक्ट करेगा और ये एक वेलेंट इंटरमीडिएट बनाएगा। वेलेंट इंटरमीडिएट में यहाँ से जो H प्लस निकला है वो H प्लस जाकर के फिर से SO3 माइनस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप, दैट मींस कि इट विल शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सो ये हमारे पास अभी तक दो रिएक्शंस मिले हैं हमको जो कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन था आपका आयोडीनेशन, ठीक है, और सेकंड रिएक्शन है आपका सल्फोनेशन which is showing kinetic isotopic effect। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे SO3H आकर के अटैच हो जाएगा। तो इसमें आप जितने भी रिएक्शंस देख रहे हो, जो भी स्टेप्स है सारे के सारे स्टेप्स आर रिवर्सिबल, राइट। ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप है ना, ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप है। सो नॉर्मली क्या होता है कि इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, अगर इसमें वाटर डाल देते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये ना फिर से वापस बेंजीन दे देता है। रीजन इसका क्या है कि आप अगर बेंजीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो आपको जो है वो ये प्रोडक्ट मिलेगा SO3 बेंजीन, बेंजीन और SO3H, ठीक है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा वाटर डाल देंगे तो ये फिर से दोबारा वापस चला जाएगा रिएक्शन, ठीक है, डाइल्यूट करने पे। नेक्स्ट है इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में वी आर यूजिंग अल्काइल हैलाइड एंड AlCl3 और लुईस एसिड और FeX3 यूज कर रहे हैं या BF3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रिएक्शन देखिए, जैसे अगर आपका अल्काइल हैलाइड है, इसको AlCl3 के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनने वाला है और AlCl4 माइनस बनने वाला है, ठीक है। तो यही कार्बोकेटायन जो है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन रिंग में अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो ये एक वेलेंट इंटरमीडिएट बनाएगा विद CMA3, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये आपका बन गया, ठीक है। इसका मैं रेट लिख रहा हूँ, द रेट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई ARH विच इज बेंजीन, RX एंड द लुईस एसिड, ठीक है। तो ये रेट एक्सप्रेशन देख करके आप बता सकते हो कि स्टेप 1 RDS है या स्टेप 2 RDS। रेट का एक्सप्रेशन स्टेप 1, राइट, क्योंकि हम लोग रेट किसके लिए लिखते हैं, RDS के लिए लिखते हैं ना, तो दिस मस्ट बी RDS, rate determining state। So it will also not show kinetic isotopic effect, it will not show kinetic isotopic, ठीक है। So,
ऑर्डर ऑफ द, अगर हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द लुईस एसिड, तो लुईस एसिड का जो है ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं AlCl3 इज अ बेटर लुईस एसिड देन FeCl3 या फिर BF3, TiCl3, ZnCl2, SnCl4, ये सारी की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट द बेटर वन इज AlCl3। मैक्सिमम आप लोग AlCl3 या AlBr3 या AlX3 टाइप कुछ देखोगे रहेगा लुईस एसिड। सो अगर रीअरेंजमेंट कराना है तो रीअरेंजमेंट कब होगा, जब हम लोग AlCl3 यूज़ कर रहे होंगे तब। बाकी और कोई यूज़ करेंगे तो रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिपोर्टेड रिएक्शन में आपको दे रहा हूँ कि ये आपका एक रिपोर्टेड रिएक्शन है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल व्हेन। तो हमने ये अल्काइल हैलाइड लिया है और AlX3 लिया है। यहाँ पे आप देखोगे जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो रीअरेंज प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये फिर जाकर के दोबारा फिर रीअरेंज हो जाएगा विथ मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये जाकर के यहाँ पे अटैच हो गया, ये देखो ये वाला। तो AlCl3 में रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है। FeCl3 यूज करेंगे तो वी विल गेट अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ऐसे ही जाकर के अटैच हो जाएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका रीजन यही है कि AlCl3 इज अ बेटर लुईस एसिड। तो क्योंकि एक बेटर लुईस एसिड है तो इट कैन पोलराइज दिस बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो पोलराइज कर पाएगा AlCl3। FeCl3 इज वीक लुईस एसिड, तो ये इतना पोलराइज नहीं कर पाता है, इसीलिए कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होता है FeCl3 में। रादर ये जो है वो बस एक यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दे सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स RCl एंड लुईस एसिड विथ वीकर FeCl3 इज नॉट पोलराइज्ड एनफ टू अलाउ isomerization, right? And unrearranged product is also formed at low temperature। अगर टेम्परेचर कम है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नॉर्मली रीअरेंजमेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी चाहिए नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लो अगर होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है या फिर हाई टेम्परेचर है तो फिर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। लास्ट है हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में वी आर यूजिंग असाइल क्लोराइड या असाइल हैलाइड विच इज RCOX और AlCl3। इसमें भी यही हो रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, RCOCl और AlCl3 का रिएक्शन होगा तो वी विल गेट RCO, जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4। ठीक है, तो ये RCO कुछ ऐसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और AlCl4 माइनस ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका ये इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैच होगा वेलेंट इंटरमीडिएट। वेलेंट इंटरमीडिएट बनने के बाद जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप्स जो है अटैच हो जाएगा बेंजीन में। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, राइट। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सो ये हमारा है, दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें जो है कुछ रिएक्शंस के बारे में देखना है कि देयर विल बी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रिएक्शन इज की फिनॉल। ठीक है, ये नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट दैट एनसीईआरटी हैज गिवन यू ओनली फ्यू स्टेप्स। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल फिनॉल में NaOH यूज करेंगे तो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड आयन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन पे O नेगेटिव है दैट O नेगेटिव कैन अटैक एट दिस पोजीशन और O पे जो है नेगेटिव चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कर सकता है।
ठीक है, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन दोनों पे अटैच हो सकता है ये। तो मैंने ऑर्थो पे दिखाया है, आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे जाएगा, यहाँ पे भी जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए ऑर्थो इज मेजर, राइट। फिर इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये आपका जो है सैलिसिलिक एसिड जो है बना करके देगा, जैसे सैलिसिलिक एसिड, राइट। फिर इसको अगर हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएं, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। बेसिकली एनहाइड्राइड जब बनाते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ CH3COH, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है आपका, वो लोन पेयर दैट विल बी अट्रैक्टेड विद टुवर्ड्स दिस कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है आपका वो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी एक कार्बन पे अटैक करवा देते हैं, इस कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक हो, अटैक होने के बाद ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद फिर से जब क्लोज होगा पाई बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये जनरल स्टेप है, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये स्टेप वाइज नहीं होगा, ये साइमल्टेनियसली होगा, साइमल्टेनियसली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो ये आपका जो है ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, ये ग्रुप, राइट। ये वाला जो ग्रुप है असाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड है दैट कंपाउंड इज एस्प्रीन, जो हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, एस्प्रीन वही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट इज गिटरमैन कॉश रिएक्शन। गिटरमैन कॉश में वी आर यूजिंग बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl एंड AlCl3। तो इसका रिएक्शन जो है वो भी आपका फ्रिडल क्राफ्ट जैसा ही रिएक्शन हो रहा है। So COHCl and AlCl3 will form HCO and AlCl4 plus, ठीक है। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा एग्जिस्ट करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो HCl में जो H प्लस है, ये H प्लस जाकर के हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फाइनली आपका बनेगा Hc पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि यही वाला है, और AlCl4 भी बन गया है, राइट। तो इसको जब हम लोग अटैक कराएंगे बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग में अटैक कराने के बाद फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ व्हीलाइन इंटरमीडिएट, व्हीलाइन इंटरमीडिएट बनने के बाद जो आपका HCO है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, गिटरमैन कॉश रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर भी लेते हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उससे भी रिएक्शन हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इट जस्ट लाइक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसमें ZnHgHCl यूज करते हैं, तो इट गिव्स अस सिंपल नॉर्मल एल्केन। इसमें रिडक्शन हुआ है कार्बोनिल ग्रुप का और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए बस हमारा बस यही स्टेप का यूज़ है कि अगर आपको जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखे और ZnHCl यूज़ कर रहा है हम लोग, तो ये जा करके आपको एल्कीन बनाना है इसमें। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंशियन रिडक्शन, ठीक है। और इसमें एक और इसका वेरिएशन है विच इज़ वुल्फ किश्नर, जहाँ पे हम लोग NH2 यूज़ कर रहे हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो ये भी जो आपका सेम प्रोडक्ट बना करके दे रहा है।
दोनों में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग HCl यूज कर रहे हैं और सेकंड रिएक्शन में हम लोग बेस यूज कर रहे हैं, मतलब एसिड और बेस यूज कर रहे हैं। तो जो जो भी क्लेमेंशन रिडक्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं हो, ठीक है। सो क्लेमेंशन रिडक्शन इज फॉर कंपाउंड सेंसिटिव टू बेस, ठीक है। एसिड अगर सेंसिटिव टू एसिड होगा तो ये एसिड के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ये ग्रुप ले लिया, ठीक है। सो दिस OH इज सेंसिटिव टू एसिड, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वुल्फ किश्नर, ठीक है। सिमिलरली जैसे वुल्फ किश्नर तभी यूज कर सकते हैं जब आपका एसिड सेंसिटिव हो, बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे देखो ये एग्जांपल, एक बेंजीन में ROCl P1 और P2 बना के देखिए क्या होना चाहिए, P1 P2। क्या होना चाहिए P1, अच्छा ये बताओ। ये एक्चुअली RCOCl होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। RCOCl, COR, ठीक है। तो ये फिडलक्राफ्ट असाइलेशन है बेसिकली, राइट। सो C डबल बॉन्ड O, ये आपका P1 हो गया। P2 कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड, बिल्कुल। P2 आपका हो जाएगा CH2R, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं ऊपर वाले रिएक्शन में। एक एक एनिलीन का रिएक्शन मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हम लोग Br2CS2 यूज कर रहे थे लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों जगह ब्रोमीन लग जा रहा था, ठीक है। सो व्हाट टू डू इफ वी वांट टू प्रोड्यूस ओनली दिस, ठीक है। हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ये ऐसे तो ये तो नहीं कर सकते कि एनिलीन में ब्रोमिनेशन करवा दिया, Br2CS टू लेस देन 5 डिग्री से, ये तो इतने कम टेम्परेचर में भी 3 ब्रोमीन जो है आपको अटैच करके दे पा रहा है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि NH2 यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज अ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो वन थिंग वी कैन डू इज वी कैन डिक्रीज इट्स एक्टिवनेस बाय अटैचिंग सम अनदर ग्रुप टू द नाइट्रोजन, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देखिए। So we have a problem statement that we have to produce para bromo aniline, ठीक है। we have to produce this। so मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एनिलीन को रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड से, ठीक है।
तो ये फिर से वही कि आपका नाइट्रोजन में लोन पेयर है एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये लोन पेयर आपका जाकर के अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ओपन होगा, ये लोन पेयर क्लोज होगा और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, ठीक है, ये बन गया। अब आप ये देख सकते हो कि जो एनिलीन है उसका एक्टिवेटिंग नेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, डिक्रीज कैसे किया हम लोगों ने? बाय मेकिंग श्योर कि यहाँ जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर इज नॉट ओनली डोनेटेड टू द बेंजीन रिंग, रादर इट इज बिजी इन कॉन्जुगेशन विद अदर ग्रुप्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेटेड है और बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो इसका जो एक्टिवनेस है या फिर एक्टिवेटिंग नेचर है वो डिक्रीज कर दिया गया है। अब जाकर के हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब इसका ब्रोमिनेशन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही ब्रोमीन अटैच होगा। Br2 CH3OH 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, CH3 सॉरी CH3COH कहना चाहिए, CH3OH नहीं, माय बैड, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है CH3COH सॉल्यूशन में, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रोमीन जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड करना है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के आपका फिर ये ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। पैराफिरेशन, फिर इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे ये फिर से दोबारा आपको एनिलीन दे दे। हाइड्रोलाइज कर रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट H प्लस डाल करके एंड सेकेंड इज CH3OH in the presence of H2। तो ये आपको जो प्रोडक्ट बना करके देगा वो ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसा ऊपर हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा ना कि एनिलीन इज हाईली रिएक्टिव देन फिनॉल, तो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली decreasing the activity of or reactivity of the aniline so that we can get monosubstituted bromination। दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 1 कि द करेक्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution is
Okay, I guess ki most of the people have answered. Yes, so you guys are all as absolutely right, most of you, which is option D is the right one. ठीक है, तो आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल, तो जो हमने टेबल बनाया था ऑन दैट बेसिस आप इसको डिफाइन कर सकते हो. दिस इज एक्टिवेटिंग, ठीक है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड दिस इज वेरी डीएक्टिवेटिंग, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, तो एक्टिवेटिंग सी, फिर जिसमें कुछ नहीं है डी, फिर उसके बाद डीएक्टिवेटिंग विच इज बी, एंड फिर ये वेरी डीएक्टिवेटिंग फिर ए. तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका एक असाइनमेंट है, मैं आपको ये आज दे दूंगा, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना. ठीक है, और ये हम लोग जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. आई गेस कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस हमने एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिया है, तो ट्राई करना सॉल्व करने का. अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग कल क्लास में ही कर लेंगे इसको. ठीक है, मेनली जो है दो रिएक्शंस बचे हुए हैं हमारे पास, वो दो रिएक्शंस मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो खत्म हो पाए. ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो दो रिएक्शंस है. एक रिएक्शन जो है आपका वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का है. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का कैसा रिएक्शन है देखिए, कि हम लोगों ने बेंजीन रिंग में एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन करवा रहे हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्युमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आपको इससे मिलेगा असाइल ग्रुप, जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हेल्पफुल आएगा. राइट, सो इट विल प्रोड्यूस this. Alright. सिमिलरली एक ऐसे ही रिएक्शन है, अगर मान लो कि हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड के बजाय बेंजीन रिंग में ही कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एसिटिक अनहाइड्राइड जैसा बिहेव कर सकता है. ये ग्रुप, राइट. तो यहाँ पे भी सेम चीज यही करेंगे हम लोग कि अगर यहाँ पे AlCl3 है तो दैट AlCl3 विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एल्युमिनियम. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा ठीक है. ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और फिर से दोबारा इसको अगर हम लोग बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बन जाएगा राइट. तो बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन निकलेगा दैट हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड एट COH. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, जैसे हम लोगों ने एल्कीन में एक जगह ऑक्सीडेशन पढ़ा था आफ्टर ओजोनोलाइसिस, which is oxidation by KMnO4. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है which is slightly different, but we are using oxidation KMnO4. यहाँ पे भी KMnO4 जो है हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ
साइड चेन। इसमें क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग में कार्बन लगा है और उस कार्बन में हाइड्रोजन है, ठीक है, और बाकी कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं KMnO4 के साथ, तो ये हमें यूनानिमसली ये बना कर देंगे, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने CH3 लिया और KMnO4 यूज किया, तो ये हमें बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। फिर से दोबारा यही सेम चीज बन रहा है, फिर से यही बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे KMnO4 से रिएक्शन करवाए तो इट विल शो नो रिएक्शन। रीजन क्या है, क्या होना चाहिए रीजन? एग्जैक्टली, कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी नो रिएक्शन क्योंकि कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 यूज करेंगे तो ये जो है आपका रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देगा। राइट, अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो ये दोनों के दोनों कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। बाकी जो रिएक्शन इसमें आपको मिलेगा वो NBS भी मिलेगा पैकेज में, देख सकते हो आप NBS, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो हम लोगों ने नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड के बारे में पढ़ा था।